types of family, that is joint family and nuclear family. So in the previous video we have already discussed about joint family. Joint family is a large family and members are grandparents, mother, father and their children. Or maybe in some joint family you will see grandparents, mother, father, children, uncle, aunt and their children. So these both types of a joint family you will find. Now student, after that, what is the meaning of a cousin, brother or sister, that I have already explained you. If two kids having same mother, अगर दो बच्चे हैं और उनकी मम्मी सेम है तो डैट आर नोन एज सिबलिंग्स. That are known as siblings. SIBLINGS. अगर if there are two children in a family and their mother is same, फैमिली में दो बच्चे हैं, दोनों की मम्मी सेम है, तो that children are known as siblings. Is it clear? Now today let's discuss about the nuclear family. See, I show you the picture of a joint family also. See, in a picture, this is a joint family. You will observe grandfather, grandmother, your father and mother, uncle and aunt in this picture you will observe and their children. So this is a family photo of a joint family. Grandparents means grandfather, grandmother, father, mother, uncle, aunt and their children. So student, this is a picture of a joint family. Now let's start with the nuclear family. See, in this picture you will observe this is a nuclear family. Mother, father and children. This is a picture of a nuclear family. Mother, father and their children. So student, nuclear family okay. So nuclear family is a small family. Okay, you can say that a nuclear family is a small family. आप बोल सकते हो एक न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, आपके मदर फादर भी थे, अंकल आंटी एंड देयर चिल्ड्रन. बट इन न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली. एंड व्हाट आर द मेंबर ऑफ दिस फैमिली? कौन कौन मेंबर होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में? इट हैज a mother, it has a mother, a father and
वन और मोर चिल्ड्रन। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली और इसके मेंबर कौन होंगे, इसमें मदर, फादर, वन और मोर चिल्ड्रन। या तो फैमिली में एक ही बच्चा होगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो सच ए फैमिली इज नोन एज ए न्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन अ न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली। मतलब जैसे हमने वहां आप लोग को बढ़ाया था ना, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ए जॉइंट फैमिली। द एडवांटेज में मैंने बताया था जॉइंट फैमिली की ये एडवांटेज है, इफ मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, सो द चिल्ड्रन आर नॉट अलोन, बच्चे अकेले नहीं रह जाते, उनको देखने वाले फैमिली में और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट हैं। There are many other members also in the family to look the kids. Is it clear? And another advantage मैंने बताई थी, there is lot of housework, so there is a equal distribution of work among the members of the family. Is it clear? अब now इसमें क्या है, न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली है, it has a mother, father and one or more children. Now what is the reason behind that? ठीक है, पहले मैक्सिमम इफ यू सी इन द ओल्ड टाइम, बेटा अगर हम लोग ओल्ड टाइम की बात करते हैं तो मैक्सिमम फैमिलीज कैसी होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ठीक है, मैक्सिमम इन द ओल्ड टाइम अगर हम देखें तो फैमिलीज कैसे होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ओके, सो how these big families start becoming a small families, कैसे ये big families किसमें चेंज होने लगी, न्यूक्लियर फैमिली में। so reason is that mainly in the old time the occupation of the people is only farming. ओल्ड टाइम में मेन काम धंधा जो मैक्सिमम काम जो लोग करते थे वो क्या करते थे बेटा, फार्मिंग करते थे, खेती करते थे। ठीक है, सारे लोग विलेजेस में बिग बिग जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, इन दिस मैनर दे लिव। बट द टाइम चेंज, नाउ पीपल आर एजुकेटेड। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो जॉइंट फैमिली का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जॉइंट फैमिली, ठीक है, जॉइंट फैमिली। देखो जॉइंट फैमिली, हाउ द जॉइंट फैमिली चेंज इनटू अ न्यूक्लियर फैमिली। मानो कि ये जॉइंट फैमिली है एंड इन दिस जॉइंट फैमिली देयर आर 4 ब्रदर्स इन दिस जॉइंट फैमिली। मान लो राहुल है, राजेश, रमेश, राजू। ठीक है, सो दे ऑल आर एजुकेटेड। ठीक है, अब देखो जॉइंट फैमिलीज से ब्रेक होके ही आपकी न्यूक्लियर फैमिली बनी है। ठीक है, मान लो कोई भी फैमिली का एग्जांपल ले रहे हैं, इस फैमिली में 4 ब्रदर्स हैं, राहुल, राजेश, रमेश, राजू। सो ऑल ऑफ देम आफ्टर टेकिंग देयर एजुकेशन, सबने पढ़ाई की और एजुकेशन करने के बाद अब राहुल का जॉब लग गया दिल्ली में। ठीक है, मान लो ये जॉइंट फैमिली कहाँ की थी, विलेज की थी ये जॉइंट फैमिली। राहुल आफ्टर डूइंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल का जॉब दिल्ली में लग गया। राजेश गेट द जॉब इन वाराणसी। आफ्टर his education, Ramesh got the job in Mumbai, and Raju, after completing his education, he got the job in Gujarat.
you can say लखनऊ, ठीक है। अब देखो ये सारे ज्वाइंट फैमिली में थे। सो दिस इज आल्सो द रीजन, जॉब इज आल्सो द रीजन दैट द big joint families are divided into a small nuclear family. Now Rahul, after getting his education, he got the job in Delhi. Rajesh got job in Varanasi, Ramesh in Mumbai and Raju in Lucknow. They all belonging to the same family, but they got job in different cities. ये एक ही फैमिली के बच्चे थे, लेकिन इन सब की जो जॉब लगी, जो नौकरी लगी, ठीक है, सबकी दूर दूर लग गई। जैसे आप ही हो, आप भी बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के संग रह रहे हो, आपके फादर आर्मी में है, ठीक है, तो ड्यू टू जॉब आप लोग देखते होगे, कभी पापा की पोस्टिंग बनारस आ जाती है, कभी लखनऊ, कभी आप लोग दिल्ली चले जाते हो, कभी जम्मू कश्मीर चले जाते हो। आफ्टर एवरी 3 years you move from one place to another. Reason is job. So after their education they got job in different cities. So this is also a reason of breaking of a joint family. Now in present time joint family is changing into a nuclear family. आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होती जा रही है। जिसको जहां जॉब लग रही है वो वहां जॉब करने चला जा रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना, ओल्ड टाइम में क्या था, मोस्टली लोगों का जो ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन मीन्स जो काम धंधा करते थे, मैक्सिमम पुराने समय में लोग खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, और इसलिए वो साथ रहते थे। लेकिन अब एजुकेशन, सबको ही एजुकेशन कर रहा है, एजुकेशन के बाद सबको जॉब मिल रही है। तो जॉब तो ऐसा नहीं ना है कि आप जहां पढ़ोगे वहीं आपकी जॉब मिलेगी। जॉब तो आपकी कहीं भी लग सकती है। आपके पापा आर्मी में, कभी उनकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, कभी गुजरात होती है, कभी राजस्थान होती है, कभी जम्मू कश्मीर रहती है। ड्यू टू जॉब after every 3 years they move from one part of the country to another part of the country. In the same manner now the peoples are educated and they settle in the cities where they get the job. अब वो उन्हीं सिटीज में सेटल हो जा रहे हैं जहां पे उनको जॉब मिल रहा है। जैसे राहुल दिल्ली में सेटल हो गया, राजेश वाराणसी में, रमेश मुंबई में, राजू लखनऊ में। इन दिस मैनर स्टूडेंट, joint family in present time, joint family is converted into a nuclear family. Okay, this is also the reason. अब देखो next, and mostly अब क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं मोस्टली एट द टाइम ऑफ हॉलीडेज, जैसे आपको समर हॉलीडेज मांगते हैं, ऑटम ब्रेक पड़ती है, ठीक है, आपके समर हॉलीडेज होते हैं ना, ऑटम ब्रेक होती है। सो न्यूक्लियर फैमिली मेंबर मोस्टली मीट देयर रिलेटिव्स एट दीज हॉलीडेज और इन दीज वीकेंड्स, ठीक है। आज क्या हो गई है, ज्वाइंट फैमिली ब्रेक होके न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होती जा रही है। तो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर्स अपने रिलेटिव से कम मिलते हैं व्हेन दे मीट। सो स्पेशली दे मीट एट द टाइम ऑफ हॉलीडेज। जैसे होता है ना, गर्मी की छुट्टियों में आप स्कूल आते हो आफ्टर समर डेज, तो हम पूछते हैं आप कहाँ गए थे। बहुत बच्चे क्लास के बोलते हैं हम गाँव गए थे अपने दादा दादी के यहाँ। कुछ बच्चे बोलते हैं हम मम्मी के यहाँ गए थे, नाना नानी के यहाँ गए, हम मामा के घर गए, मौसी के घर गए, चाचा के घर गए, हम दादाजी के घर गए, दादी के पास गए। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज क्या है, जॉब सबकी डिफरेंट सिटीज़ में लग रही हैं। तो जो आपकी ज्वाइंट फैमिली है वो ब्रेक होके अब क्या बनती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली में लोग अपने रिलेटिव से कम मिलते हैं, स्पेशली इन द हॉलीडेज, वीकेंड के समय, हॉलीडेज के समय ही अपने रिलेटिव से मैक्सिमम लोग मिलते हैं। और सम स्पेशल ओकेजन्स लाइक बर्थडे है, वेडिंग है, ओके। सो एट दीज आर द टाइम्स व्हेन
we meet when the member of the nuclear family meet their relatives। ये ऐसा टाइम है कि मेंबर जो है न्यूक्लियर फैमिली के अदर मेंबर्स अपने रिलेटिव से दे मीट। इज इट क्लियर? अब देखो, जब हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां भी बता देते हैं आपको। रिलेटिव्स की जब बात करते हैं बेटा, रिलेटिव्स, when we are talking about relatives, then it is also divided into two parts। अब जब हम रिलेटिव्स की बात करते हैं बेटा, तो ये भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वन इज नोन एज पैटर्नल, पैटर्नल रिलेटिव्स, and one is known as maternal, maternal relatives। Is it clear? When we are talking about the relatives, जब हम बेटा relatives की बात करते हैं, तो one is known as paternal relatives and one is known as maternal relatives। So what is the meaning of this? देखो बेटा, paternal relatives, relatives which are from the father family। जैसे आपकी मम्मी ने शादी करके आपकी पापा की फैमिली को ज्वाइन किया। पहले आपकी मम्मी भी अपनी फैमिली में रहती थी, जब आपकी मम्मी की मैरिज हो गई आपके फादर से, तो आपकी मम्मी ने आपके पापा की फैमिली को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब पैटर्नल रिलेटिव्स कौन होते हैं? फादर की फैमिली के रिलेटिव्स। फादर की फैमिली में क्या आएगा? आपके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, आपके दादाजी आएंगी, आपके दादाजी आएंगे, आपकी दादी आएंगी, आपके चाचा चाची, अगर आपके फादर के भाई हैं कोई, तो आपके अंकल और आंट आएंगे, और आपकी आंट जिसको हिंदी में बुआ बोलते हैं, ठीक है। पापा की अगर कोई सिस्टर है तो उसे आप क्या बोलते हो? बुआ बोलते हो, ठीक है। और इंग्लिश में हम आंट बोलते हैं, ठीक है। इन द सेम मैनर, जो पापा की तरफ के, द रिलेटिव फ्रॉम फादर साइड, जो पापा की साइड के रिलेटिव होंगे उनको हम लोग बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स। और जो आपके मम्मी के साइड के रिलेटिव होंगे, जैसे आप बोलते हो ना, मम्मी के घर गए थे, वहां कौन मिले, उन ग्रैंड पेरेंट्स को आप क्या बोलते हो? नाना जी, नानी जी बोलते हो ना। मम्मी के घर जाते हो तो वो ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नाना जी और नानी जी, क्योंकि वो आपके मम्मी के पापा मम्मी है, ठीक है। और मम्मी के ब्रदर हैं या मम्मी की सिस्टर हैं तो इंग्लिश में तो अंकल और आंट बोलेंगे, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अगर मम्मी के ब्रदर हैं तो हम बोलते हैं ना मामा के घर गए थे। और मम्मी के सिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं, और इंग्लिश में अंकल और आंटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज पैटर्नल रिलेटिव? रिलेटिव फ्रॉम फादर फैमिली, फादर के फैमिली के रिलेटिव, दैट आर नोन एज पैटर्नल रिलेटिव्स, एंड रिलेटिव्स which are from the mother family, मम्मी के फैमिली की relatives, that are known as their maternal relatives। maternal relatives है तो मम्मी के फैमिली के, paternal relatives है तो फादर की फैमिली के। इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू नोट, आप नोट कर लो। पैटर्नल रिलेटिव्स, रिलेटिव्स रिलेटिव्स ऑफ फादर फैमिली, ठीक है।
पापा के फैमिली के जो रिलेटिव्स होंगे that are known as relatives of father family is known as paternal relatives. Okay, now next is maternal. Relatives of mother family is known as maternal relative. Is it clear? Paternal relative, relative of father family is known as paternal relatives, or maternal relatives. Relatives of mother family is known as maternal relatives. Is it clear? Now, next important thing, अब देखो न्यूक्लियर फैमिली में व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या है? स्मॉल फैमिली है. स्मॉल फैमिली है. इज इट क्लियर? तो चिल्ड्रन गेट गुड फैसिलिटी ठीक है. चिल्ड्रन गेट गुड फैसिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, फैसिलिटी इन द सेंस ऑफ गुड एजुकेशन, फूड, क्लोथ, एक्स्ट्रा. क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में सारे फैमिली के मेंबर्स को केयर करना पड़ता है. सारे फैमिली मेंबर्स को केयर करनी पड़ती है. ठीक है. लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली के एडवांटेज क्या है? चिल्ड्रन गेट, क्योंकि स्मॉल फैमिली में या तो सिंगल किड होता है या उससे मोर हो सकते हैं, 2 और 3. सो इन अ स्मॉल फैमिली चिल्ड्रन गेट गुड फैसिलिटी. विच टाइप ऑफ फैसिलिटी? दे गेट गुड एजुकेशन, फूड, cloth, extra. And what is the disadvantage इसकी ये कि if mother and father both are working, mother is also doing the job, father is also doing the job, so no one is in the home to see the children. That is a disadvantage. और joint family में क्या था? mother father if they are working, then there are many other members in the family who take care of the children. Is it clear? So good facility for education, food, cloth, extra, this I already tell you. Now another term which is given in your book, that is what is twins. If two children birth at the same time,
अगर दो बच्चे सेम टाइम उनका बर्थ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, जुड़वा बच्चे, हिंदी में जुड़वा बच्चे बोलते हैं, इंग्लिश में ट्विंस बोलते हैं। इफ टू चिल्ड्रन बर्थ एट द सेम टाइम, अगर दो बच्चे एट ए टाइम सेम टाइम अगर उनका बर्थ हुआ है तो इनको ट्विंस बोलते हैं। और अगर उनकी शक्लें बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ट्विंस की हमेशा फेस मिलती ही है, ठीक है, कभी कभी पर होता है कि जो ट्विंस होते हैं उनकी फेस बिल्कुल सेम लगती है, जैसे आप मिरर में अपना चेहरा देखते हो ना, ठीक है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। उनको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। ठीक, सो अब एक छोटी सी रिकैपिटुलेशन करा देते हैं आज की वीडियो में, व्हाट न्यू थिंग्स वी हैव लर्न। सो इन टुडे वीडियो स्टूडेंट वी डिस्कस न्यूक्लियर फैमिली and I explain you what do you mean by a nuclear family. Nuclear family is a small family, and after that I explain you what is the reason how the nuclear family formed. So how the, or you can say how the joint family, कैसे joint family धीरे धीरे आज के प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होती जा रही है। रीजन क्या है, after education they are getting job in different cities, so they move to that cities in which they are getting the job। old time में क्या मेन ऑक्यूपेशन था, फार्मिंग, बट इन प्रेजेंट टाइम after getting the education the people, new generation adult, they are trying for the job, and in which city they are getting the job they settle there, and when they meet their relatives at the time of holidays or at some special occasions like birthday, wedding anniversary or wedding, so these are the special time when they meet with the relatives. After that I explain you about the relatives. When we say about relative, then again relatives are also divided into two parts, that is maternal relative and paternal relatives. So relatives which are from mother family, that are known as maternal relatives, and the relatives which are from father family, that are known as paternal relatives. And after that I explain you about twins. If two kids take a birth at the same time, then they are known as twins, and twins have many habits same, and if their face अगर वो बहुत ज़्यादा सेम है तो ऐसे ट्विंस को हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।